Now we are starting with मैंने आपको बोला था कि एमसीक्यूज करेंगे अपन, ठीक है? सो हलो अल्केन हलो अरेंज चैप्टर भणવાનું કીધું હતું, થોડી ઘણી રિએક્શન્સ લર્ન કરી હશે. Now we are doing starting MCQs of textbook based only hello arene hello alkane chapters. टेक्स्ट बुक बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हलो अल्केन कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग. कुछ अल्काइल हैलाइड्स में भी आपको देती हूँ, उनमें से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का पता लगाना है, ठीक है? आइडेंटिफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री alkyl halides from following. कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी, वो आपको पता लगाना है. सबसे पहला है इसमें CH3, CH, Br, CH3. Second is C, CH3, CH3 and Br. Third is CH3, CH, CH3, CH2Cl. And the fourth is CH3I. Just we have to identify which is primary, which is secondary and which is tertiary. कैसे पता लगाते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो होता है जिसमें हैलोजन कंटेनिंग कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड हो, बाकी 2 हाइड्रोजन. सेकेंडरी halogen containing carbon attached to 2 other carbon, next is hydrogen. And tertiary halogen containing carbon attached to 3 other carbon atoms, and it is called tertiary. Primary, secondary and tertiary. पता लगाते हैं इनमें से कौन सा प्राइमरी है. सी halogen containing carbon એટલે આ કાર્બન જોવાનું, it is connected to 2 other carbon atoms, so it will be secondary alkyl halide. What about second one? Halogen containing carbon. इस C को देखना है, it is connected with 3 other carbon atoms, so it is tertiary alkyl halide. In this, halogen containing carbon attached to 1 more carbon atom. આ એક જ થી attach છે, આ પાછા બે થી connected. આપણે આને નહીં જોવાનું, આપણે આને જોવાનું છે. This is connected with only 1 carbon, so it is primary alkyl halide. And what about the last one? Methyl iodide is primary. इस पे वो डेफिनेशन लागू नहीं होती कि halogen containing carbon attached to 1 more carbon, then it is called primary. Methyl iodide is methyl chloride, methyl bromide, they all are primary alkyl halide. Clear? बहुत काम आता है primary, secondary, tertiary. So what is primary alkyl halides? Halogen containing carbon attached to 1 more, then it is called primary. Halogen containing carbon attached to 2 more carbon atom, it is called secondary. And if halogen containing carbon attached to 3 other carbon atom, then it is tertiary. ठीक है? Next question. नेक्स्ट में अपन देख रहे हैं कि एलाइल हैलाइड कौन सा है इसमें से. क्वेश्चन 2, which of the following is allylic halide? allyl halide, इनमें से कौन सा allyl halide है? मैं 4 ऑप्शन देती हूँ. फर्स्ट इज Cl, the second is Br, the third option is
And the fourth option is which is allylic halide. अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि allylic halide कौन सा होता है. Allyl halide is one in which, yes बेटा correct, it is C, third one. कैसे आइडेंटिफाई किया? हेलोजन कंटेनिंग कार्बन sp3 होना चाहिए, मतलब चारों सिग्मा बॉन्ड, फिर उसका जो नेबरिंग कार्बन है वो sp2 होना चाहिए. हेलोजन वाला कार्बन sp3 और फिर उसका नेबरिंग कार्बन sp2 होना चाहिए. देखो इसमें हेलोजन, this carbon is sp3 and its neighboring carbon this is sp2, so this is allylic halide. Halogen containing carbon sp3, then its neighboring carbon is sp2. Halogen containing carbon sp3, then its neighboring carbon is sp2. इसको क्या बोलेंगे अपन? Allylic halide. So third option correct, that is allylic halide. First कौन सा कहलाता है? Vinyl halide. First वाला कौन सा है? Vinyl halide. हेलोजन वाला कार्बन सीधा sp2 से कनेक्टेड हो तो उसको विनाइल बोलते हैं. तो यहाँ पे हेलोजन वाला कार्बन डायरेक्टली sp2 से कनेक्टेड है, क्या बोलेंगे? विनाइल हैलाइड. ये वाला कौन सा कहलाता है? ये हेलोअरीन है. अरीन है बिकॉज हेलोजन इज अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग. ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब बेंजीन रिंग. और हेलोजन अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अरीन. तो थर्ड सेकंड जो है वो अरीन है. फोर्थ वाला किसमें आएगा? 2 डिग्री, क्योंकि ये वाला कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो दूसरे दो कार्बन से कनेक्टेड है, जिसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री. तो हमारा जो क्वेश्चन था which is allylic halide, तो which is correct? The third one. Third one is allylic halide. Okay. Next question. Which one of following is benzylic halide? Question third. Which of the following is 2 degree benzylic halide? 2 degree benzylic halide. इनमें से कौन सा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है? सबसे पहला ऑप्शन है इसमें रिंग CH2 CH3 Cl. सेकेंड ऑप्शन CH2 Cl. थर्ड ऑप्शन CH CH3 CH2 Cl. D option CH CH3 Br. Which is 2 degree benzylic halide. First we should know what is benzylic halide और उसके बाद उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. श्वेतांशी बोल रही है A. No, it's not A. It's not A बेटा. Which is benzylic halide? बेंजाइलिक हैलाइड पहले क्या होता है वो समझना जरूरी है. डायरेक्टली बेंजीन रिंग थी, एक कार्बन कनेक्टेड हो ने ई हेलोजन થી કનેક્ટેડ હોય આટલું કોમ્બિનેશન હોય તો એને બેન્ઝાઇલિક કહેવાય. યસ હમઝા, ઇટ ઇઝ કરેક્ટ, ઇટ ઇઝ ડી. બેન્ઝાઇલિક કોને કહેવાય? हेलोजन वाला जो कार्बन है that is connected to the ring, આટલું કોમ્બિનેશન હોય તો જ બેન્ઝાઇલિક કહેવાય. આવા નથી, આવા हेलोजन પછી કાર્બન પાછું કાર્બન પછી બેન્ઝીન ring, એટલે આ તો બેન્ઝાઇલિક જ નથી. It's not benzylic. This is benzylic, but it is 1 degree because halogen containing carbon attached to one more carbon atom. This is not benzylic because halogen containing carbon attached to the carbon and then ring. So benzylic is not here. This is correct answer. That is 2 degree benzylic halide. Why it is 2 degree? Halogen वाला कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर और एक इधर. Hence it is 2 degree benzylic halide.
So first identify whether they are benzylic halide or not, and then 2 डिग्री पे आप क्या करते हो, पहले से 2 डिग्री को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं. First just identify whether they are benzylic halide or not. If they are benzylic halide, then go towards 2 degree. Okay, next question. Which of the following is isobutyl group? Which of the following is isobutyl group? A option है CH3, CH3, CH3. B option है CH3, CH, CH3. C option है CH3, CH, CH3, CH2. D option है which is isobutyl group. इन चारों में से कौन सा isobutyl group है, पता लगाओ. Which is isobutyl group? Which one is isobutyl group? समीर बोल रहा है C. Correct. C is isobutyl group. कैसे पता लगाते हैं isobutyl? CH3, CH, then down CH3. This particular combination is called iso. This is called iso. और बाजू में CH2 है, टोटल 4 कार्बन है, इसको बोलेंगे isobutyl. देखो ये ऐसा बना हुआ है. If this is isobutyl, then what is first one? What is first one? CH3, C, then CH3, then CH3. The first one is tertiary. क्या बोलते हैं इसको? Tertiary. What about this one? CH3, CH, and CH3. This is iso. Isopropyl. This is called isopropyl. And what about this one? This is neopentyl. क्या बोलते हैं इसको? Neopentyl. So it is isobutyl. The C1 is the isobutyl. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत लोग पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, और इस बार तो चांसेस है कि खाली टेक्स्ट बुक से पूछा जाए. सो अगर आप टेक्स्ट बुक परफेक्ट करते हो तो यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है? दिस इज कॉल्ड isobutyl. नेक्स्ट, what is IUPAC name of methylene chloride? What is IUPAC name? What is IUPAC name of methylene chloride? Methylene chloride. What is the IUPAC name of methylene chloride? स्ट्रक्चर आना चाहिए पहले मिथाइलिन क्लोराइड का, फिर अपन IUPAC नेम लिखेंगे. What is the IUPAC name of methylene chloride? फॉर्मूला होता है मिथाइलिन क्लोराइड का CH2Cl2. This is methylene. CH2 ग्रुप होता है ना, उसको मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं. इसका नाम है मिथाइलिन क्लोराइड. कॉमन नेम है. अब IUPAC नेम आप लिख सकते हो. इट इज डाइक्लोरोमीथेन. सुना था से डाइक्लोरोमीथेन. नेक्स्ट देखिए, you have to draw the structure of 4 tertiary butyl 3 iodoheptane. Question is draw structure of 4 tertiary butyl. 4 tertiary butyl, it's 3 iodoheptane. 3 iodoheptane.
स्ट्रक्चर 4 दे देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट है। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 आयोडो हेप्टेन। देखिए मैं ऑप्शंस देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन CH3, CH2, CHI, 4 it's CH2, CH, CH3. Is this correct? Is this correct? 4 tertiary butyl, 3 iodoheptane. क्या ये करेक्ट है? No, it's not correct because 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कार्बन तो है, हेप्टेन तो है। 1, 2, 3 पे आयोडो है, 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं है। दिस इज नॉट टर्शियरी ब्यूटाइल, ये तो फिनाइल रिंग भी आ रहा है। टर्शियरी ब्यूटाइल किसको बोलते हैं? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इज दिस वन, I3, C, CH3, અહીંયા CH3 અહીંયા CH3 આનું નામ છે ટર્शियरी ब्यूटाइल। नंबरिंग आप यहां से करोगे। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 आयोडोहेप्टेन। क्यों टर्शियरी ब्यूटाइल पहले लिखा है? कोई आपसे पूछे कि करेक्ट आईयूपीएसी नेम है या नहीं है तो कैसे जवाब दोगे? क्यों इसको आपने टर्शियरी ब्यूटाइल लिखा? टर्शियरी ब्यूटाइल नाम में पहले क्यों लिखा हुआ है? टी तो अल्फाबेटिकली पहला नो आवे, बट टर्शियरी नो टी और सेकेंडरी नो एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड न થતું, એટલે સીધું બી इंक्लूड થશે अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, એટલે આ સાચું આઈયુપીએસી नेम। टर्शियरी का टी और सेकेंडरी का एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन आइसो का आई और नियो का एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड करते हैं। So, इसमें बी पहले आएगा अल्फाबेटिकली, फिर आई आएगा। इससे करेक्ट नाम है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 आयोडोहेप्टेन। ओके, वन मोर कॉमन नेम से आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। द कॉमन नेम इज, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ vinyl chloride? What is IUPAC name of vinyl chloride? IUPAC name of vinyl chloride. So, is this correct? CH2 double bond CHCl. Is this correct? CH2Cl, CH double bond CH2. Third is CH3 CH2Cl, and the D option is CH2 double bond CH2 CH2Cl, which is vinyl chloride. Which is vinyl chloride. Yes, Ali Asghar, it is first one. First is vinyl chloride. કેમ ખબર પડી? આ vinyl group કહેવાય. Halogen containing carbon sp2, it is called vinyl group. So this is called vinyl chloride. नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बी वाले को. What is the name of B? allyl chloride. Third is ethyl chloride. और फोर्थ का तो कोई कॉमन नेम नहीं, उसका आईयूपीएसी लिखना पड़ेगा. So first one is vinyl chloride. IUPAC name for vinyl chloride is क्लोरोइथीन. सो नाम था से क्लोरोइथीन. आ रहा है कुछ समझ में? नेक्स्ट, किराल कार्बन पढ़ा था अपन ने. किराल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन वो होता है जिसमें 4 ग्रुप जो कार्बन से अटैच्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, which isomer of C4H9Br is optically active and what is its IUPAC name? What is its IUPAC name? बताइए कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसका आईयूपीएसी नेम
क्या होगा बताइए। बताइए which isomer of C4H9Br is optically active and what is its IUPAC name? बोलिए। Can you C4H9Br का कौन सा आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? पहले तो पता होना चाहिए इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनते हैं। तो टोटल इसके जो आइसोमर्स बनते हैं वो होते हैं 4। देयर आर 4 आइसोमर्स ऑफ C4H9Br। उसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो दिस वन CH3 CH CH3 Cl। Is this optically active? तो 5 कार्बन हो गए, सॉरी 4 कार्बन चाहिए ना, 4 आइसोमर्स बना रहे हैं पर Br6। फर्स्ट आइसोमर, सेकंड आइसोमर, थर्ड आइसोमर, and the fourth isomer which is optically active। टोटल 4 आइसोमर्स होते हैं। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड which is optically active। कौन सा होगा? श्वेतांशी फर्स्ट बोल रही हो बेटा, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड and fourth, which is correct? Fourth one is correct। Fourth one is, ये समझा, correct। Fourth one is optically active। कहाँ है इसमें ऐसा कार्बन? Ru। This carbon is asymmetric carbon क्योंकि उससे चारों ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है। कौन कौन से ग्रुप अटैच है? एक मिथाइल है, एक ब्रोमो है, एक H है, एक इथाइल। So when all the 4 group attached to the carbon is different, it is chiral carbon, and chiral carbon is always optically active। Understood? Its IUPAC name is 2-bromobutane। Common name is secondary butyl bromide। Secondary butyl bromide is IUPAC name of optically active isomer of C4H9Br। Clear? Next। क्लोरीनेशन पढ़ा था हमने, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन गिव्स अल्काइल हैलाइड। अल्केन में से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और अल्काइल हैलाइड बनते हैं। कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि उसमें जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल वाला होता है। क्लियर? जैसे क्वेश्चन, what is the product obtained? What is the product obtained when isobutane undergo chlorination in presence of sunlight? Undergo chlorination in presence of sunlight। सनलाइट की प्रेजेंस में आइसोब्यूटेन का क्लोरीनेशन करो तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? What is the product obtained when isobutane undergo chlorination in presence of sunlight? बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहले तो आइसोब्यूटेन की फॉर्मूला आनी चाहिए। हर चीज इंपॉर्टेंट, हर चीज हमको आना चाहिए। दिस इज आइसोब्यूटेन। व्हाट इज इट? आइसोब्यूटेन। 2-methyl propane। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अगर इसका क्लोरीनेशन करोगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? 2 टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, ये सारे प्राइमरी हाइड्रोजन हैं
और ये जो बीच में है ये टर्शरी हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन जल्दी रिप्लेस होगा? टर्शरी हाइड्रोजन। अगर इसका क्लोरीनेशन किया तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बनेगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। So tertiary butyl chloride is the product obtained when isobutane undergo chlorination. क्लियर? क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बनता है और जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वो फ्री रेडिकल वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which isomer of pentane? Which isomer of pentane gives one product on monochlorination? One product on monochlorination in sunlight. Monochlorination in sunlight. Body. Which gives only one product. Which isomer? Yes, Hamza. Very good, beta. Which isomer of pentane give one product on monochlorination of sunlight? एक ही प्रोडक्ट देंगे। पेंटेन के पहले तो आइसोमर दिमाग में होने चाहिए। How many isomers? 3 isomers पेंटेन है। उसमें से एक नॉर्मल पेंटेन होता है ना? इसको नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। फिर इसको आइसोपेंटेन बोलते हैं। This is called isopentane and this is known as neopentane. Third one is called neopentane. First is normal pentane, second is isopentane and third is neopentane. ये तो अपन 10th में भी पढ़ते थे बेटा। There are 3 isomers of pentane. सवाल ये है कि इनमें से कौन सा एक ही प्रोडक्ट बनाएगा जब आप क्लोरीनेशन करोगे। देखो, अगर आप इसका क्लोरीनेशन कर दें तो कितने टाइप के हाइड्रोजन से वो पता करना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन इट हैज? ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है, लेकिन ये बीच वाले सारे सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो 2 टाइप के हाइड्रोजन हुए तो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है और 3 डिग्री हाइड्रोजन है। इसमें 3 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। लेकिन नियोपेंटेन में लास्ट वाले में सिर्फ एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, दैट इज प्राइमरी हाइड्रोजन। इट गिव्स ओनली one product on monochlorination. It gives only one product on monochlorination. अब मुझे बताओ, इन तीनों का अगर मोनोक्लोरिनेशन करते हैं, इन तीनों का अगर मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो मोनोक्लोरिनेशन के बाद सपोज मैंने इसका मोनोक्लोरिनेशन किया, सेकंड वाले का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तो खत्म हो गया। नियोपेंटेन इज द आंसर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वी डू मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन, which product is optically active? Monochlorination of isopentane अगर करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा? बताइए। मोनोक्लोरिनेशन से आइसोपेंटेन के ऊपर अगर आप क्लोरिनेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हिच इज ऑप्टिकली एक्टिव? 2-3 मिलेंगे, उसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा? बताइए। ये है आपका आइसोपेंटेन, CH down CH3 CH2 and CH3। कौन कौन से हाइड्रोजन आप हटाओगे so that you can have ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट? देखिए, पहले मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटाऊं, CH2Cl, ये पहला प्रोडक्ट। दूसरा, यहां से आप हाइड्रोजन हटाइए, दूसरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। ठीक, थर्ड प्रोडक्ट, ये वाला हाइड्रोजन हटाइए,
और फोर्थ प्रोडक्ट आप यहां से हाइड्रोजन हटाइए, अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं अपन। 4 प्रोडक्ट बनाया, फर्स्ट वन दिस, सेकंड वन इज, थर्ड वन एंड द फोर्थ वन। कैसे पता लगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? इसका क्लोरीनेशन किया, ये दोनों सिमेट्रिकल कार्बन है,